Hello. Hello. Okay, so good afternoon to all. Good afternoon, sir. So, all of you are requested kindly join immediately. Okay, so previously we have discussed about the experiment details as well as. Am I audible properly to all of you? हेलो. Yes, sir. मेरी आवाज आ रही है सभी को? Yes, sir. Okay. So previously what we have discussed, the basic introduction of the I think in the introduction part we have discussed what are the experiments relevant to this particular lab, that is microprocessor and microcontroller, clear, and the paper code is KC552. So the AKTU have offered out of total 16 experiment, out of which we will perform 10 experiment, clear. So we have got some virtual lab link also, so through which we can connect directly and get the information relevant to that particular lab, clear. And those which we don't have the virtual lab link, so we also can get the experiment either by some video YouTube lectures or some other relevant sources, clear. So I am just sharing you again the virtual lab link, clear. So just wait, I am just sharing. All of you are getting my voice properly? There is any issue then you can notify me. सभी को आवाज आ रही है हमारी मेरी properly? Yes, sir. Okay. So I am again sharing the link which is provided. So can anyone explain me what I have discussed last time? Can anyone give me a brief idea what I have discussed last time? Is only the introduction was there or something else related to the 8085 microprocessor program related to arithmetic addition, which I have discussed? Is there anything? Can anyone explain? One of you can explain what I have discussed last time? Hello? I think you all are getting my voice. So can anyone explain what I have discussed last time? Any one of you? No one. Okay. किसी को भी नहीं कुछ पता है क्या डिस्कस किया मैंने लास्ट टाइम? कोई नहीं बताएगा? हेलो? ओके, सो कोई बात नहीं, मैं खुद आप लोगों से बता देता हूँ क्या हम लोगों ने बात किया था लास्ट टाइम, क्या डिस्कशन किया था।
So फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक एक्सपेरिमेंट लिस्ट शेयर करी थी आपको, दैट इज रेलिवेंट टू द syllabus which is covered in this particular lab by the AKTU, clear? उसके बाद उसमें से हमने आपको बताया था कि कौन कौन सी लैब ऐसी हैं जिनके लिंक्स हमारे पास वर्चुअल लैब लिंक अवेलेबल है, क्लियर? And then we go to the first experiment, that is basically the addition of two 8-bit numbers or 16-bit numbers using 8085 microprocessor, and with carry and without carry. So I am just share you the link which we have access. Okay, so it is visible to all of you, I think. सबको ये visible हो रहा है? Yes, sir. Okay, so previously we have just discussed the preview of the lab. Clear? So now this is the link which is provided by the AKTU. Clear? So if we access few of the experiment, if we want to access few of the experiments, so we can follow the this particular link, and suppose I am just copy and paste to the web browser. Clear? इसको मैं copy and paste मारूंगा अभी जब web browser पे, then we go to the I'm just showing you. Suppose I am accessing this link. Okay, so just wait when I am accessing. पेज दिख रहा है सभी को, ये वाला जो ओपन हुआ है अभी? Is the page is visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So when I have access on the link on the web browser, clear? On the URL page, URL जहां हम लोगों ने इसको टाइप किया, तो हमें ये इंटरफेस हमारे सामने खुल के आ गया, ठीक है? नाउ इफ सपोज वी आर, ये हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, ठीक है? एडिशन ऑफ 2 8-bit नंबर्स और 16-bit नंबर्स, तो 8085 की हेल्प से हमको इसको करना है. तो सपोज आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन दिस, क्लियर? जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा, तो वी आर गेटिंग दिस टाइप ऑफ इंटरफेस, क्लियर? Here we are having aim, introduction, theory, some pretest. So this is the first experiment of addition of two numbers, clear? So before going to the addition of two numbers, okay, we need to know some basic information regarding hexadecimal addition, clear? Also we need to know about some 8085 microprocessor basics. So I'm just try to cover these things. You all are also studying in this particular semester, this particular subject, that is microprocessor. So I'm not going to the detail of deep of the subject, but just I will give you the overview of the 8085 microprocessor. So मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ, बाकी डिटेल्स आप लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हो सब्जेक्ट्स में. तो so it is exactly what a 8-bit microprocessor, clear? Basic, yeah, and it is having a supply that is plus 5 volt and clock frequency up to 3 megahertz, clear? So इसमें आपका कुछ बेसिक चीजें हैं, जैसे जो हमारे सिग्नल्स यूज होते हैं 8085 में, they are categorized into 6 group, that is address bus, data bus, control and status signals, then power supply and frequency signals, then externally initiated signal, serial input output ports, clear? So these are what? These are exactly the signalings which are used, signals which are used in the 8085 microprocessor. इसके बाद आपका है कि the various operation performed, which the operation which it performs exactly is what? कुछ operations को perform करता है, जैसे
स्टोर 8 बिट डेटा। मैंने पहले ही बताया कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर है तो 8 बिट का डेटा स्टोर करता है, क्लियर। एंड इट परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन, ये आपको सभी को पता है। एक प्रोसेसर जो होता है दैट इज वर्किंग एज ए सीपीयू, सो इट परफॉर्म द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, क्लियर। अरिथमेटिक के अंदर आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीजें कवर हो जाती है। लॉजिकल इज टोटली बेस्ड ऑन व्हाट, the gate level operations, clear. Now test for conditions is also the part of the functioning of the 8085 microprocessor. Then sequence the execution of instructions and store data temporarily during execution in the defined read write memory locations called the stack, clear. So what are the steps involved to fetch a byte in 8085 microprocessor? So कुछ steps involved होते हैं, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एड्रेस बस, डेटा बस एंड कंट्रोल बस, क्लियर। सो एड्रेस बस सबसे पहले हमारी जो मेन बस होती है दैट इज एड्रेस बस। कोई भी डेटा को कहाँ जाना है और कहाँ से उसको पिक कर रहे हैं, तो दैट इज द मेजर पार्ट ऑफ द एनी डेटा, क्लियर। सो वो एड्रेस बस उसकी जो होती है, उसके अंदर उसमें एड्रेस की इंफॉर्मेशन होती है कि कहाँ से वो इनिशिएट हो रहा है और कहाँ उसको जाना है। So this is happened with the address bus, clear. So address bus provides the address of the address 12 and बजे खाते address. 12 बजे। If someone have not muted their mic, kindly mute yourself. Okay. Unless I don't say that you should unmute yourself, kindly mute yourself. Yeah. Okay. So again we are talking about what, the address bus. The address bus provides the source and destination address of a relevant data which is under process, clear. उसके बाद आता है डेटा बस, सोर्स एड्रेस बस के बाद डेटा बस। डेटा बस एग्जैक्टली कैरी द डेटा फॉर दैट पर्टिकुलर एड्रेस, क्लियर। जैसे अगर आप मान लीजिए कोई भी डेटा एड्रेस मिल गया आपको, तो एड्रेस पे डेटा को ट्रांसफर करना है, तो दैट इज द रोल ऑफ डेटा बस, क्लियर। उस एड्रेस पे उस डेटा को ट्रांसफर करना या पहुंचाना। इसके बाद आता है कंट्रोल बस। कंट्रोल बस एंड टाइमिंग, कंट्रोल बस एग्जैक्टली कंट्रोल्स द टाइमिंग इंफॉर्मेशन, मींस विच टाइम पे, और पूरे फंक्शन को, पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने का काम कंट्रोल बस का है, क्लियर। जो पूरा का पूरा आपका प्रोसेसिंग है, इसकी कंट्रोलिंग भी कंट्रोल बस ही करता है, क्लियर। So that is having very important part, playing very important part. Also the data bus is exactly what, a type of bidirectional bus, clear, which can route the data in both directions, clear. उसके बाद आपका कुछ मशीन साइकिल्स हैं, जो कि ऑपकोड फेच हो गया, मेमोरी रीड हो गया, मेमोरी राइट हो गया, इनपुट आउटपुट रीड हो गया, इनपुट आउटपुट राइट हो गया, देन इंटरप्ट एक्नॉलेज एंड बस आइडल कंडीशन। ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा ड्यूरिंग मशीन साइकिल, क्लियर। मशीन साइकिल क्या होती है? मशीन साइकिल एग्जैक्टली आपका रिप्रेजेंट करती है कि स्टेप बाय स्टेप क्या क्या टास्क किस समय पर परफॉर्म हो रहा है। ऑपकोड फेच मतलब होता है कि कैसे आपने पहले फेच किया डेटा को, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फेचिंग, मतलब होता है डेटा को फेच करना, मतलब लेना, ठीक है। इसके बाद आपने उसको जो है उस पे मेमोरी रीड ऑपरेशन या मेमोरी राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, उसके लिए इंस्ट्रक्शन साइकिल अलग अलग होती है, ठीक है। फिर इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट आउटपुट राइट, फिर इंटरप्ट एक्नॉलेज, फिर बस आइडल कंडीशन। ये सब के अलग अलग मशीन साइकिल्स हैं, तो ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। Then we come to some instructions regarding it. This is very important, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट इसलिए मैं कह रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो इसमें इंस्ट्रक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें इंस्ट्रक्शंस को रखना पड़ता है, ठीक है। कि ऐड है, ऐड करने के लिए अलग कमांड देनी होती है, मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग कमांड देनी होती है, ठीक है। कैरी या जंप कैरी के लिए अलग अलग कमांड होती है, ठीक है। ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे डेटा ट्रांसफर कराना है एक एंड से दूसरे एंड पे, ठीक है, तो मूव कमांड यूज करते हैं। ये आप देख सकते हैं, इज अ मूव कमांड, MOV, दैट इज मूव डेटा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। तो मूव कमांड यूज करते हैं।
ऐड करना है अरिथमेटिकली तो हम इसको ADD कमांड यूज करते हैं, ठीक है। डिक्रीमेंट करने के लिए DCR कमांड यूज करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जैसे लॉजिकल ऑपरेशन कोई परफॉर्म करना है तो उसके लिए यहाँ पे देख लेते हैं, अब ये कमांड यूज होती है। ब्रांचिंग के लिए ये कमांड यूज करते हैं, ठीक है। तो ऐसे कई सारे हमारे इंस्ट्रक्शंस है जिसकी कमांड आपको याद रखनी पड़ेगी। तो इसके बाद हम लोग आते हैं कि हाँ, कुछ और भी इंस्ट्रक्शंस हैं। जैसे 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है तो मूव कमांड यूज करते हैं। 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है तो MVI कमांड यूज करती है। सारे काम वही करेंगे एक जगह से डेटा को मूव कराने के लिए, ठीक है। 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन है तो JMP कमांड यूज करते हैं। तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद कुछ आपके एड्रेसिंग मोड्स हैं, जैसे इमीडिएट एड्रेसिंग, रजिस्टर एड्रेसिंग, डायरेक्ट एड्रेसिंग, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, इम्प्लिसिट एड्रेसिंग, सब एड्रेसिंग मोड है। दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ द पिन आर्किटेक्चर ऑफ 8085। दिस इज 40 बिट पिन स्ट्रक्चर। 40 पिन का स्ट्रक्चर है जिसमें आप देख सकते हैं कि कुछ हमारे अलग अलग पिन्स पे अलग अलग स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। जैसे स्पेसिफिकली अलग अलग ऑपरेशंस के लिए अलग अलग पिन डिजाइंड है, ठीक है। जैसे आपका जो एड्रेस मल्टीप्लेक्स डेटा बस है, दैट इज AD0 to AD7। ये आपका पिन नंबर 12 से लेके पिन नंबर 19 तक है। इसमें एड्रेस और डेटा बस दोनों कैरी कर रहे हैं, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं एड्रेस मल्टीप्लेक्स डेटा बस, ठीक है। मतलब एड्रेस के साथ डेटा है। ये एग्जैक्टली जो हमारा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है, 2 बिट्स होती है, LSB और MSB। तो जो लीस्ट सिग्निफिकेंट डेटा या बिट होता है वो आपका एड्रेस मल्टीप्लेक्स डेटा बस होता है। और जो हायर ऑर्डर एड्रेस बस होती है जिनको हम लोग बोलते हैं A8 से A15, जो कि पिन नंबर 21 से 28 तक है, ये हायर ऑर्डर एड्रेस बस है। इसमें केवल एड्रेस इंफॉर्मेशन है, डेटा नहीं है। लेकिन जो AD0 से AD7 है, इसमें एड्रेस और डेटा दोनों है, ठीक है। इसको लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स कहते हैं, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट डेटा इंफॉर्मेशन है। क्लियर है कुछ आपके? ALE है एड्रेस लैच इनेबल। फिर रीड राइट पिन्स है आपकी 30 to 31। इनपुट आउटपुट ऑब्लिक मेमोरी है, ठीक है। रीड, रीसेट इन, रेडी पिन है, रीसेट इन है, ठीक है। ये सारे हैं। होल्ड है, HLDA एक्नॉलेज, एक होल्ड एक्नॉलेजमेंट है, एक है होल्ड, एक होल्ड सॉरी होल्ड एक्नॉलेजमेंट पिन है, ठीक है। ऐसे ही आपका देख सकते हैं इसमें रीसेट आउट पिन है, ठीक है। VCC है जहां से सप्लाई दे रहा है कुछ। एक आपका SOD और SID। SOD सीरियल आउटपुट डेटा, SID सीरियल इनपुट डेटा, क्लियर। ट्रैप है, ट्रैप एक इंटरप्ट सिग्नल है जो कि हार्डवेयर इंटरप्ट होता है। RST 7.5 ये सब हार्डवेयर इंटरप्ट है। RST 7.5, 6.5, 5.5 ये सब आपके हार्डवेयर इंटरप्ट है। So am I audible to all of you properly? हेलो। फिर ये देखिए मेरी आवाज आ रही है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Ayushya is there? Ayushya Tripathi? Yes, sir. क्या हाल है? How are you? अच्छे हैं sir. So good, sir. Okay, okay. And what about sir? Sir, अच्छे हैं हम वो sir पहले से ठीक है. Okay, okay. Okay, so this is the architecture of the 8085, clear. So architecture exactly represent what? किसी भी सिस्टम का जो आर्किटेक्चर होता है वो एग्जैक्टली क्या रिप्रेजेंट करता है कि कैसे वो जिस पर्पस के लिए डिजाइन किया गया है उस पर्पस को वो कैसे फुलफिल करेगा, ठीक है। सो इट कंप्लीट गिव यू द डिटेल ऑफ द प्रोसेसिंग, क्लियर। तो ये जो 8085 का आर्किटेक्चर है ये हमें यही बताता है कि कैसे वी कैन परफॉर्म द लॉजिकल ऑपरेशन, क्योंकि इसी पर्पस से इसको डिजाइन किया गया है। अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन अगर इसको परफॉर्म करना है तो हाउ इट कैन परफॉर्म।
So suppose according to our experiment detail, तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जैसे हमारा 8085 माइक्रो प्रोसेसर की हेल्प से we need to add 2 hexadecimal number. Suppose हमें पहला ही टास्क परफॉर्म करना है, तो how we can perform, how in this architecture we get the information and how we get the result. तो देखिए हमें कैसे, हम कहाँ से इंफॉर्मेशन आएगी और कहाँ से हमको रिजल्ट मिलेगा, तो ये कैसे हमको पता चलेगा। तो मैं एक थोड़ा सा आपको ब्रीफिंग दे देता हूँ। जो ये बी सी डी ई एच एल है, ये सब जनरल पर्पस रजिस्टर है, क्लियर। एंड ये सब आप लोगों को पता ही होगा, इसका आर्किटेक्चर आपको पढ़ाया गया होगा क्लास में, सब मतलब जो भी फैकल्टी है। उसके बाद आपका ये मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि कैसे डेटा आता है। डेटा एग्जैक्टली यहाँ से आता है, क्लियर। दिस एंड इज एग्जैक्टली टेकिंग द डेटा। जैसे मान लीजिए हमें 2 इंफॉर्मेशन को ऐड करनी है, we suppose want to add 2 information here। information क्या है, जैसे मान लीजिए एक है हमारे पास A, एक है B, इसको अगर मैं ऐड करता हूँ then we get the result into A, ठीक है। यहाँ A क्या है, A accumulator है, this A is the accumulator, ठीक है। and B is another register जहाँ पे डेटा stored है, ठीक है। suppose temporary register is there, clear। so A का एक डेटा B के डेटा से ऐड होगा, then finally we get the result into the accumulator। this is the whole operation, यही आपका ऑपरेशन है, ठीक है। तो ये हमको कैसे अचीव करना है, तो we are having accumulator, ओके। सो इसको हमें अगर अचीव करना है, देखिए कैसे अचीव करेंगे। so we are having accumulator this and we are having temporary register this, clear। so यहाँ दोनों में हमारे डेटा हैं, ठीक है। एक्यूमुलेटर से डेटा आया नीचे की तरफ, कहाँ गया, प्रोसेसर की तरफ, सॉरी एएलयू की तरफ, एएलयू इज आल्सो प्रोसेसर, क्लियर। फिर टेम्परेरी रजिस्टर से डेटा आया, फिर से गया प्रोसेसर की तरफ। तो वी आर गेटिंग 2 डेटा फ्रॉम एएलयू एंड टेम्परेरी रजिस्टर, क्लियर। और दोनों डेटा हमारा कहाँ जा रहा है, ALU सेक्शन में जा रहा है। ALU इज व्हाट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये अरिथमेटिक ऑपरेशन भी परफॉर्म करेगा, लॉजिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म। तो सपोज वी आर यूजिंग अरिथमेटिक ऑपरेशन, क्लियर, एट ए टाइम। तो A आया, B आया, और दोनों को इसने क्या किया, ऐड कर दिया है। इंस्ट्रक्शन इसको मिली है कि इसको ऐड करना है। अब इसको ये कैसे पता चलेगा करना क्या है, तो इसको पता इसलिए चल रहा है क्योंकि इसको इंस्ट्रक्शन दी गई है, यू नीड टू परफॉर्म arithmetic operation on that, means you need to add those 2 data you are getting। तो इसको इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, कहां से मिलना इंस्ट्रक्शन, it is getting the instruction from the instruction register, it is having the instruction register। so instruction register से जो डेटा आएगा उसको, वो इंस्ट्रक्शन उसको इसको मिल रही है, that is provided by the timing and control information, okay। so it is getting the instruction and then accordingly it adds the data, clear। suppose it add the data, ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं ऊपर फ्लैग रजिस्टर भी लगा हुआ है। फ्लैग रजिस्टर टोटल 5 फ्लैग होते हैं 8085 में। कौन कौन से 5 फ्लैग होते हैं, साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग और पैरिटी फ्लैग। ये हमारे 5 फ्लैग होते हैं, आप लोगों ने पढ़े भी होंगे, यहाँ लिखा भी हुआ है, देख सकते हैं आप ऊपर। 8085 flags are sign flag, S means sign, Z means zero, auxiliary carry flag, parity flag and carry flag। तो अब ये जब हम 2 नंबर्स को ऐड करेंगे, तो ऐड करने पे ऐसा हो सकता है कि हमें कैरी मिले और ऐसा हो सकता है कैरी ना मिले, ठीक है। तो अगर कैरी मिलता है तो कैरी फ्लैग अपने आप को सेट कर लेगा, कैरी फ्लैग आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। जो कैरी फ्लैग की पोजीशन है बिट की, वो अपडेट होके 1 हो जाएगी। और अगर वो 0 रहता है, मतलब कोई कैरी हमको नहीं मिला, ऐसा भी हो सकता है हम 2 हेक्साडेसिमल नंबर को ऐड करें, हमें कोई कैरी ना मिले, तो उस केस में क्या होगा, कैरी फ्लैग 0 रहेगा, ठीक है। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग माय पॉइंट, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे दिस इज ए बाई डायरेक्शनल कैरी, क्लियर। जो बाई डायरेक्शनल फ्लैग रजिस्टर, तो ALU से डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसका मतलब क्या है कि जब इसमें ऐड करने पे अगर इसको कैरी मिलेगा, तो कैरी विल बी अपडेटेड अकॉर्डिंगली इनटू द फ्लैग रजिस्टर, क्लियर। अगर कैरी 0 है तो फ्लैग रजिस्टर में कैरी की पोजीशन 0 रहेगी। अगर कैरी अपडेट होके 1 आ रहा है तो कैरी विल बी अपडेटेड अकॉर्डिंगली, और जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट यहाँ से होता हुआ
ऐड करने के बाद जो भी रिजल्ट हमारा है वो यहाँ से होता हुआ 8 बिट इंटरनल डेटा बस से होता हुआ फिर से एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा, जो कि मैंने बताया था ना a+b रिजल्ट स्टोर्ड इन द एक्यूमुलेटर अगेन, तो रिजल्ट आपका फिर से एक्यूमुलेटर में स्टोर्ड हो जाएगा। तो इट इज हैविंग द बाई डायरेक्शनल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन विद द इंटरनल बस। ठीक है, इज इट क्लियर? SID SOD का काम आपको पता ही होगा, सीरियल इनपुट डेटा आ रहा है और सीरियली आउटपुट डेटा निकल रहा है, दिस इज SID एंड SOD। ठीक है, दीज आर सम हार्डवेयर इंटरप्ट। हार्डवेयर इंटरप्ट में भी जो ट्रैप होता है उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है, ये देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पे है। INTR मींस इंटरप्ट रिक्वेस्ट, INTA मींस इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, ये आपके स्टेटस सिग्नल्स हैं। स्टेटस सिग्नल अगर 0 0 है तो हॉल्ट ऑपरेशन परफॉर्म होगा, स्टेटस सिग्नल 0 1 है तो राइट ऑपरेशन, 1 0 है तो रीड ऑपरेशन, 1 1 है तो फेच ऑपरेशन। ठीक है, बाकी ये फ्लो चार्ट है। नाउ वी कम टू द प्रोग्रामिंग पार्ट। Certainly I am coming to the programming of this. मेरी आवाज सभी को आ रही है? हेलो, मेरी वॉइस सभी को आ रही है? यस सर आ रही है। Sure. So let's come to the programming part. So theory have been covered. Clear? This is the theory part. Theory में आपका ये पूरा जितने कमांड है ये सारे आ जाएंगे, जो हमने अभी कमांड की बात करी थी। We also have some procedure regarding that. We are having the microprocessor simulator, which is not opening right now. So if you want to download this, you can try to download this microprocessor simulator. Clear? And you need to also have the Java. Java आपको पहले डाउनलोड करना पड़ेगा and then इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो काइंडली ट्राई टू डू दिस। इसको आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए। सभी को दिख रहा होगा ये सभी को दिख रहा है ना, जो मैं अभी इसमें बता रहा हूँ आपको? यस सर। ठीक है, तो ये आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ये देखिए, माइक्रो प्रोसेसर सिमुलेटर एंड जावा, डाउनलोड टू इंस्टॉल इट। इसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। दिस इज सिमुलेटर वर्जन 2 ऑफ 8085। उस पे आपका ये जो प्रोग्रामिंग है ये आपकी उसी पे रन करेगी। ठीक है ना? इसमें आपको क्या करना है, पहले एक प्रोग्राम कोड लिखना है एडिटर फाइल पे। एक विंडो होती है एडिटर वाली, एक विंडो होती है सिमुलेटर वाली। ठीक है, तो जो एडिटर वाली विंडो होती है, मैं आपको एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा। ये आपका जो लेफ्ट वाला पोर्शन है ये एडिटर विंडो है। ठीक है, यहाँ पे आप प्रोग्राम को कॉपी पेस्ट करते हैं। ठीक, फिर इसको असेंबल करते हैं। क्या करते हैं? असेंबल। असेंबल वाले बटन पे जब क्लिक करेंगे तो इट विल ट्राई टू असेंबल द प्रोग्राम। क्लियर? उसके बाद जो राइट साइड वाला पेज है ये वाला, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, रजिस्टर्स, मेमोरी एंड डिवाइसेस। यहाँ एग्जैक्टली 3 अलग अलग इंटरफेसेस हैं जहां पे आप अलग अलग तरीके से डेटा को मॉनिटर करेंगे। ठीक है, मेमोरी में वो डेटा स्टोर्ड रहेगा, हर एक लोकेशन पे वो दिखा देगा। डिवाइसेस में जहां आप इंटरफेसिंग वगैरह कर सकते हैं। रजिस्टर्स में आपको सारा जो डेटा आप यहाँ पे असेंबल करते जाएंगे उसकी अपडेटिंग यहाँ पे आती जाएगी। जो ऑपरेशन परफॉर्म करते जाएंगे वो यहाँ पे दिखाता जाएगा, एक एक जगह पे स्टोर होता जाएगा। ठीक है ना? तो अभी मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ। हाँ, तो 1 मिनट रुक जाइए जरा सा। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले क्या है इस प्रोग्रामिंग पार्ट में, राइट द प्रोग्राम कोड ऑन एडिटर फाइल विंडो, फिर स्टोर सम इनपुट डेटा एट स्पेसिफिक मेमोरी एरे, क्लिक ऑन द ऑप्शन असेंबल फॉर सिमुलेशन। तो जो भी सिमुलेशन रिजल्ट है वो आपका राइट साइड में आएगा जब आप यहाँ असेंबल करेंगे। जब इस असेंबल पे क्लिक करेंगे तो सिमुलेट होना शुरू हो जाएगा और रिजल्ट आपका यहाँ शो करेगा राइट साइड में। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, राइट द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द प्रोग्राम टू सिमुलेट ऑप्शंस,
फिर सिमुलेशन ऑफ एंट्री एंटायर कोड could be run at a time और स्टेप बाय स्टेप। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप चाहो तो उस सिमुलेशन का जो सिमुलेट कर रहे हैं आप प्रोग्राम को, उसको स्टेप बाय स्टेप भी मॉनिटर कर सकते हैं, या फिर आप उसको कैसे मॉनिटर कर सकते हैं, कंप्लीट एक बार में, तो एट ए टाइम भी वो पूरा रन कर जाएगा, ठीक है, या आप उसको स्टेप बाय स्टेप भी चेक कर सकते हैं। क्लियर? दोनों तरीका है। फिर एग्जीक्यूशन रिजल्ट्स कैन बी चेक थ्रू द रजिस्टर, मेमोरी एंड डिवाइस एनवायरनमेंट विंडो। तो जो भी एग्जीक्यूशन का रिजल्ट है वो आप हमने भी बताया था, रजिस्टर में भी चेक कर सकते हैं, मेमोरी में भी चेक कर सकते हैं, और डिवाइस में एनवायरनमेंट विंडो में भी चेक कर सकते हैं, जो कि राइट साइड वाले पेज पे रहता है। ठीक, मेरी आवाज आ रही है सभी को? हेलो, यस सर, आ रही है। इस वीडियो को देखिए जो मैं शेयर कर रहा हूँ। Welcome to 8085 Zubin Simulator. This window consists of two parts. आवाज आ रही है? One is editor window and the second is output window. Yes sir. You write the program at editor window and assemble it. Then you can check the output at output window. The output may be stored at various locations and you can check it under the register tab for the accumulator, general purpose registers and current location. You can also check that same output according to memory address and its value. If you have connected your device to any other interfacing device, you can check the output at devices. Coming back to the editor window, suppose I want to perform addition of two 8-bit numbers. Then I will copy the code from the addition of two numbers under the heading code and result and will paste the same in the assembler. This program says that your program starts from address 7000H. You are taking the first input at 7501, the second input at 7502, and the output is generated at 7503. The two input you are taking are 12 and 13. Now I am going to assemble this program. This program is giving me two options to assemble it. One, run all at a time, and the second is step by step. For your better understanding, I will perform step by step assembly. For this, change the starting address to 7000 as per your program and click on step by step. हेलो, हेलो, यस सर। यस सर। देखिए अभी यहाँ पे इसने एक बात बोली इस वीडियो में, वीडियो की वॉइस आ रही थी सभी को क्लियर? यस सर। ओके, इसमें इन्होंने एक बात बोली है अभी कि हम लोग जब प्रोग्राम करते हैं, अभी जो मैंने आपको बताया था, जब असेंबल करते हैं तो उसमें दो ऑप्शन आता है, स्टेप बाय स्टेप वाला ऑप्शन या रन एट ए टाइम। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप को चूज किया, क्यों? क्योंकि हमें एक एक स्टेप को मॉनिटर करना है। ठीक है, ये जो यहाँ पे आपको बाएं साइड में विंडो दिख रही है, ये वाले जो प्रोग्राम्स के पार्ट दिख रहे हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप अगर आप चेक करेंगे, इट विल शो यू द स्टेप बाय स्टेप सिमुलेशन रिजल्ट। क्लियर? तो यू कैन ऑब्जर्व, और चूंकि हम 7000 से स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा प्रोग्राम जो है वो 7000 से स्टार्ट हो रहा है, एड्रेस जो है 7000 है, जो स्टार्टिंग एड्रेस है, तो स्टार्ट फ्रॉम में हम 7000 एड्रेस डालेंगे। ठीक है, क्लियर? अब देखिए हम लोग इसमें कुछ कमांड है जो प्रोग्रामिंग का पार्ट है, वो हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद देखिए इसमें क्या बताता है, अभी ये जब इसको रन कराएंगे देखिए क्या आएगा रिजल्ट, देखिएगा, ध्यान से सुनिए। Go back to the register window in the output and click on forward. You can see a marker here which is highlighting the first line. That means
Currently, you are executing the first line. According to this, your first input should come at location 7501, and you can see 12 at this location. Again, press forward. It will move you to the accumulator. That means your value has been moved to the accumulator. Again, say forward. Now you are coming to the next memory location, which is 7502. According to your program, this is the location where your second input will come. So you can see 13 here. Again, say forward. Now, this is the command to add the content of accumulator and memory location and store the result at accumulator. So you can see the output, which is 25, 12 plus 13 at accumulator. Again, say forward. Here you are going to the location 7503. This is the location where you want your result to be stored. Then say forward. This command will move the content of accumulator into the current memory location. That means you can finally say that you have attained the output at 7503, which is 25. Go to the last line, which is RST1. This is used to terminate your program. You have successfully generated the output of addition of two 8-bit numbers, and the result is 25. You can stop here. कुछ समझ में आया आप लोग को? थोड़ा बहुत? हेलो? यस सर। हेलो? कुछ थोड़ा सा समझ में आया? देखिए, इसमें एक आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, ये फ्लैग रजिस्टर का दिख रहा है, हैं? फ्लैग रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, में सारे फ्लैग हैं, साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी, पैरिटी फ्लैग, कैरी फ्लैग। ठीक, चूंकि हम नंबर्स कौन से हेक्साडेसिमल ऐड कर रहे हैं, 12 प्लस 13, ये तो ऐड कर रहे हैं 12 प्लस 13। 12 को हमने लिया था एक्यूमुलेटर में, ठीक है, 13 को हमने एक दूसरी जगह स्टोर कराया था। एक्चुअली पहले हम क्या करते हैं, एक्यूमुलेटर में जैसे मान लीजिए हमने कोई डेटा लिया 12, ठीक, हेक्साडेसिमल नंबर, ठीक है, उसको फिर हमने क्या किया, जब हमें दूसरा डेटा लेना होगा तो जो एक्यूमुलेटर में जो पहले वाला डेटा है उसको किसी दूसरी लोकेशन पे हमको ले जाना पड़ेगा, वहां से हटा के हमने मान लीजिए उसको किसी बी रजिस्टर में स्टोर कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या किया, उसको जब हटा दिया वहां से तो एक्यूमुलेटर खाली हो गया। अब एक्यूमुलेटर पे हम जो दूसरा वाला डेटा ऐड कराना उसको भी लेके जाएंगे। जब दोनों डेटा हमारे पास आ गए, अब हम दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड करने के लिए क्या करेंगे, ऐड ऑपरेशन लगाएंगे, ए डबल डी ऐड। ठीक है, ऐड करेंगे तो दोनों को ऐड कर देगा और अकॉर्डिंगली रिजल्ट दे देगा। अब रिजल्ट आने पे हो सकता है कैरी आ रहा हो सकता है कैरी ना आ रहा हो। तो अगर कैरी आएगा तो वी नीड टू यूज JNC कमांड, जंप टू नेक्स्ट विथ कैरी। क्लियर? तो चूंकि कैरी आ रहा है JNC यूज करेंगे। अगर सॉरी, हाँ, अगर कैरी नहीं आ रहा है, नहीं कैरी नहीं आ रहा है और कैरी आ रहा है, तो दो कमांड हमारे पास है, JC है, JNC है। ठीक है, JC इज व्हाट, जंप विथ कैरी, और JNC क्या है, जंप व्हेन नो कैरी इज देयर। क्लियर? सो ये चीज आपको ध्यान देना है। तो चूंकि हम लोग जो 12 प्लस 13 यूज कर रहे हैं नंबर जो ऐड करने के लिए, उसमें कैरी नहीं मिल रहा है, 12 13 डायरेक्टली ऐड होके 25 मिल जाएगा, तो कैरी इज 0। सो इसीलिए यहाँ पे क्योंकि कैरी आ ही नहीं रहा है तो कैरी फ्लैग इज 0। देख सकते हैं कैरी वाला इंडिकेशन 0 है, कैरी फ्लैग इज 0, सभी को दिख रहा होगा, CY इज 0। क्लियर? जो हमारा ऐड करने पे रिजल्ट आ रहा है वो यहाँ एक्यूमुलेटर में स्टोर हो रहा है। ये देखिए 12 और 13 ऐड किया तो 25 आ गया। ठीक, which is directly stored in the accumulator। क्लियर? उसको हमने एक थर्ड मेमोरी लोकेशन पे भी स्टोर कराया है, जो कि हमारा है ये मेमोरी M। यहाँ पे वो डेटा दिखा रहा, दैट इज 25। ठीक है, और सभी को समझ में आ रही है चीजें? हेलो? वी आर हैविंग 3 मेमोरी लोकेशन। एक मेमोरी लोकेशन